Hello everyone. So today I am going to record this lecture on glaucoma topic. I will try to concise this topic and as well as make you conceptually understand the glaucoma topic in the span of 3 hours. So I will make the videos of 3 to 4 videos of different sessions dividing glaucoma into different subtopics. First of all, we have to know about certain investigations which are required in glaucoma. These comprises of first and foremost, that is tonometry, then gonioscopy, then perimetry, and then ASOCT and OCT, RNFL and disc. Going into details of these investigation will take up much more time, and this is mostly required for practical purpose and not here. But you should know the interpretation of these investigations as we go follow up in this lecture. So the first lecture I am going to take up will be based on the basic mechanism of aqueous production, drainage, basic thing about aqueous. The optic nerve had findings in glaucoma as well as the visual field findings in glaucoma, which are required to be known for PG exam. And then the second lecture will be comprising of the congenital and primary glaucoma. Furthermore, we will take the lecture on secondary glaucoma. Then we will come to management, dividing it into medical management, laser and surgeries. So let's start our first lecture. Now I will not be wasting time on making word by word notes. I will be going fast because I have to cover this whole concept in 3 hours. So, and today I am first time recording my video, so maybe I will get somewhere confused or jumbled up. Bear with me. First, let us see very basic thing: aqueous production and drainage. We all know aqueous is produced by the ciliary process, anterior ciliary process, anterior epithelium of ciliary process basically consists of pars plana and pars plicata part, and pars plicata has anterior epithelium and posterior epithelium. Anterior is pigmented, posterior is not pigmented. So we can make a diagram. I'm sorry, in this video you can't see the notes whatever I am making, so you have to visualize some things. There is a ciliary processes. In this comes the artery, capillaries and then venules. Now the aqueous will be filtered from the stroma of these capillaries. It will come to anterior epithelium, then via gap junction goes to posterior epithelium, then by 3 process it will go into the posterior chamber. So what are those 3 processes of aqueous production? Those are ultrafiltration, active passive and passive production. Ultrafiltration happens 20%, active is 70%, passive is 10%. Ultrafiltration is due to pressure gradient, active is due to sodium potassium ATPase pump, passive is due to concentration gradient. Then the pathway I have explained you: from the capillary stroma, aqueous goes to the anterior ciliary epithelium, which is pigmented. This thing you have to remember. Then via gap junction it goes to the posterior epithelium, and from posterior it goes into the posterior chamber. From posterior chamber via pupil it goes to the anterior chamber. And now we come to the drainage. From anterior chamber, aqueous has to drain out of the eye, so it goes through trabecular meshwork. There are 2 drainage pathway: trabecular meshwork, which is conventional and which is 80 to 90 times percent followed, and there is another uveoscleral pathway which is 10% followed. So main is trabecular meshwork pathway. Now we have 5 structures in our angle. First is Schwalbe's line. Then we have anterior trabecular meshwork, which is not functional. Then we have posterior trabecular meshwork, which is pigmented, and it has 3 parts. The first part is the innermost part is the uveal trabecular meshwork. Then we have corneoscleral. देन वी हैव जक्स्टाकैनालिकुलर. इसको जक्स्टाकैनालिकुलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जस्ट शेल्म्स कैनाल के बगल में है, तो इसलिए जक्स्टाकैनालिकुलर ट्रेबिकुलर मेशवर्क है. और इसमें सबसे ज़्यादा छोटे पोर्स होते हैं, सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू एक्वस आउटफ्लो होता है. जो भी हम ट्रीटमेंट प्रोसीजर पढ़ेंगे बेस्ड ऑन दिस पोस्टीरियर ट्रेबिकुलर मेशवर्क पढ़ेंगे, ये पिगमेंटेड होता है.
ठीक है। इसके बाद में आ जाते तुम्हारा स्क्लेरल स्पर, फोर्थ स्ट्रक्चर, देन comes the ciliary body band, then comes the root of iris. ये 5 angle structures are very important to learn on your tips, also will be seen on gonioscopy. So यहाँ से एक्वस ड्रेन आउट हो रहा है, ये दो मैकेनिज्म है, TM ड्रेन आउट एंड UV स्क्लेरल आउटफ्लो। इसको फ्लो चार्ट में हम लोग याद कर सकते हैं। जब एक्वस एंटीरियर चैम्बर से गया इनटू ट्रेबिकुलर मेशवर्क, जिसके 3 पार्ट मैंने आपको बताए, यूवी स्क्लेरल से जाएगा ये यूवीएल ट्रेबिकुलर मेशवर्क से कॉर्नियो स्क्लेरल मेशवर्क। देन आई होप यू गाइज आर नॉट गेटिंग कन्फ्यूज। मैं कुछ चीज़ें रिपीट भी कर रही हूँ, जस्ट मे बी माई स्पीड विल गेट स्लो ना, आई विल ट्राई कि मैं रिपीट ना करूँ चीज़ें, बट ये फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है ड्रेनेज के लिए। यूवीएल ट्रेबिकुलर मेशवर्क से जाएगा, सो कंटिन्यू। UVL trabecular meshwork से it will go to corneoscleral and then it will go to outermost part, that is juxtacanalicular trabecular meshwork। वहाँ से aqueous veins ले जाती है to collector channels। शल्म्स कैनाल के अंदर है ये पूरा trabecular meshwork, ठीक है। मतलब शल्म्स कैनाल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर ये जाली जैसा फिटिंग है ट्रेबिकुलर मेशवर्क। तो ट्रेबिकुलर से शल्म्स कैनाल में गया, यहाँ से कनेक्टेड है एक्वस वेन, वहाँ पे फिर कलेक्टर चैनल है स्क्लेरा में, फिर कलेक्टर चैनल से बाहर जा रहा है थ्रू एपीस्क्लेरल वेन्स। एपीस्क्लेरल वेन से जा रहा है ये इनटू सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन, सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक से जा रहा है अंदर ब्रेन में कैवर्नस साइनस। ये तो हो गया टीएम पाथवे। अगर यूवी स्क्लेरल पाथवे है तो क्या हो रहा है, जो सीलियरी मसल्स हैं, सीलियरी मसल्स के थ्रू जो स्पेस होता है वहाँ से एक्वस जा रहा है और सीधा जा रहा है सुप्राकोरोइडल स्पेस में। सुप्राकोरोइडल से जो इस कोरोइड के ऊपर है, स्क्लेरा के नीचे है, तो इंटेक्ट स्क्लेरा से बाहर चला जाता है और ये ऑर्बिटल वेन, एपीस्क्लेरल वेन वॉज इन टीएम पाथवे। यहाँ पे ऑर्बिटल वेन आ गई, अब स्क्लेरा के भी ऊपर आ गया, क्योंकि ऑर्बिटल वेन से ड्रेन हो जाता है इनटू सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन और फिर अल्टीमेटली कैवर्नस साइनस। तो ये बहुत बेसिक हमने पढ़ा कि कैसे प्रोड्यूस हो रहा है और कैसे ड्रेन हो रहा है। अब इसका कुछ रेक्टिफिकेशन वाले पॉइंट, कितना इसका पीएच होता है 7.3 इसका पीएच होता है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.35 होता है, वॉल्यूम इसका एंटीरियर चैम्बर में 0.25 ml होता है, पोस्टीरियर चैम्बर में 0.5 ml होता है, इसका टर्नओवर रेट 1.3 माइक्रोलीटर पर मिनट होता है। दिस यू हैव टू रेक्टिफाई। देन एक्वस ह्यूमर के फंक्शंस क्या होते हैं, मेन फंक्शन इसका प्रोवाइड आईओपी मेंटेन करके रखता है, ठीक है, ग्लोब की शेप मेंटेन करके रखता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है आई के अंदर। देन इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया आपने पढ़ा होगा एवेस्कुलर और एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, एक्वस से मिलता है एंडोथेलियम साइड पे। तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू कॉर्निया, और दूसरा इट प्रोवाइड द क्लियर मीडिया फॉर विजन रेज टू कम। देन इट ऑल्सो प्रमोट द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन ग्रोथ हॉर्मोन्स, ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया। नाउ अब हम एक और कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, ऑप्टिक नर्व हेड में क्या चेंजेस मिलते हैं इन ग्लूकोमा, ठीक है। ग्लूकोमा को डिफाइन करो सबसे पहले। डेफिनेशन क्या होगी, कभी भी हम ग्लूकोमा डेफिनेशन में स्पेसिफाई नहीं करेंगे ड्यू टू इंक्रीज आईओपी। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट कि सबको लगता है आईओपी बढ़ने से ग्लूकोमा हो रहा है। नो, जब मैं पैथोजेनेसिस पढ़ाऊंगी आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि ओनली आईओपी इज़ नॉट द सोल फैक्टर ऑफ ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा जो है इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी। एक दिन में ग्लूकोमा नहीं होता, प्रोग्रेसिव ऑप्टिक नर्व की न्यूरोपैथी है विच लीड्स टू ऑप्टिक नर्व हेड चेंजेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग विजुअल फील्ड डिफेक्ट, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ऑप्टिक नर्व हेड चेंजेस को हम 4 हेडिंग्स में पढ़ सकते हैं। क्या क्या, सबसे पहले तो डिस्क में क्या क्या चेंजेस होंगे, देन वेसल्स में क्या क्या चेंजेस होंगे, देन पेरीपेपिलरी एरिया में क्या चेंजेस होंगे, एंड देन RNFL रेटिना नर्व फाइबर लेयर में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो डिस्क के चेंजेस क्या होंगे, नॉर्मली जो ऑप्टिक डिस्क होती है वो वर्टिकली ओवल होती है और कप हॉरिजॉन्टली ओवल होता है, लेकिन यहाँ पे इंफीरियर नोचिंग होने लगती है तो कप वर्टिकली ओवल हो जाता है। CD रेशियो अगर मोर देन 0.7 हो या फिर दोनों आई में डिफरेंस मोर देन 0.2 हो, दैट इज सजेस्टिव एंड डायग्नोस्टिक ऑफ ग्लूकोमा। और क्या डिस्क में चेंजेस होंगे, डिस्क में स्क्लेरोटिक चेंजेस हो सकते हैं, डिस्क में मायोपिक या टेसलेटेड डिस्क जिसको बोलते हैं हो सकते हैं, ठीक है।
फिर वेसल्स में क्या क्या चेंजेस होंगे? वेसल्स में सबसे पहले वेसल्स एटीन्यूटेड एंड टॉर्चुअस हो जाते हैं। क्यों टॉर्चुअस हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे आई का एरिया बढ़ जा रहा है, रेटिना फाइबर थिन हो जा रहे हैं, तो वेसल्स पे प्रेशर पड़ता है, उसमें एटीन्यूएशन एंड टॉर्चुअसिटी डेवलप हो जाती है। देन वेसल्स नेजुलाइजेशन ऑफ वेसल होता है। वाई? बिकॉज जितना भी टेम्पोरल साइड का न्यूरो रेटिनल रिम था वो लॉस हो रहा है, लास्ट में सिर्फ नेजल साइड का NRR बचता है, तो वेसल्स धीरे धीरे शिफ्ट होते होते नेजलाइजेशन ऑफ वेसल्स हो जाता है। बायोनेटिंग ऑफ वेसल होता है। बायोनेटिंग मतलब जब कप हमारा डीप हो गया, ठीक है, तो जो वेसल्स NRR से पास होके कप में एंटर कर रहे थे वो वेसल्स एंटर डीपली शार्पली एंटर करते हैं, तो बीच में गैपिंग हमें वेसल्स नहीं दिखते, मतलब वेसल्स अपीयर्स गोइंग इनसाइड देन डिसअपीयर एंड देन रीअपीयर डीप इनसाइड द कप। दिस इज बायोनेटिंग ऑफ वेसल। देन बारिंग ऑफ वेसल क्या होता है? जब न्यूरो रेटिनल रिम थिन हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है वेसल्स फ्लोट कर रहे हैं ओवर द कप, दैट इज बारिंग ऑफ वेसल्स। इसके अलावा आपको डिस्क हेमरेज, जिसे ड्रेंच हेमरेज बोलते हैं, ये भी मिल सकता है। देन वी कम टू पेरीपेपलरी एरिया। यहाँ पे 2 जोन बन सकते हैं, बीटा जोन एंड अल्फा जोन। जस्ट सराउंडिंग द ऑप्टिक डिस्क इज द बीटा जोन। इसमें मेन चीज़ है कि इसमें फोटो रिसेप्टर्स एंड RPE एकदम एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट स्कोटोमा बनेगा कि यहाँ पे किसी भी सेंसिटिविटी को ये डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि फोटो रिसेप्टर्स हैं ही नहीं। फिर उसके बगल में होता है अल्फा जोन, जहाँ पे रिट्रैक्शन ऑफ RPE हो गया है, मतलब कि कुछ रिड्यूस हो गए हैं, नॉट एक्चुअली एब्सेंट, तो यहाँ पे रिलेटिव स्कोटोमा बनता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वी हैव दी RNFL डिफेक्ट, जो 3 तरह से हो सकते हैं, या तो डिफ्यूज, मतलब बहुत सीवियर कंडीशन है तो डिफ्यूज RNFL डिफेक्ट दिखेगा। व्हाट आर RNFL? दीज आर द रेटिनल नर्व फाइबर लेयर्स जो कि आर्कुएट पैटर्न में होते हैं, सुपीरियर आर्कुएट, इंफीरियर आर्कुएट, सुपीरियर इंफीरियर रेडिएटिंग फाइबर्स, तो इनमें डिफेक्ट मिलते हैं। दिस कैन बी डिफ्यूज, स्लिट लाइक और वेज डिफेक्ट, ठीक है। नाउ वी कम टू विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स। ये क्या क्या होते हैं? अब हमें ये ध्यान रखना है, जो रेटिना हम देखते हैं वो डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं, मतलब अगर किसी का फंडस पिक है, उसकी डिस्क अगर आपको नेजली दिख रही है तो वो राइट रेटिना हुई, उसका राइट आई का हुआ, ठीक है। लेकिन जो पेरीमेट्री होता है वो हम पेशेंट व्यू से देखते हैं, मतलब यहाँ पे जो डिस्क की वजह से बनने वाला ब्लाइंड स्पॉट है वो टेम्पोरल बनेगा। तो अगर किसी पेरीमेट्री में आपको ब्लाइंड स्पॉट इधर मिल रहा है यानी कि टेम्पोरली, तो ये राइट आई का, मतलब आई एम अ पेशेंट, आई एम लुकिंग एट माई ओन फील्ड, इफ द ब्लाइंड स्पॉट इज फाउंड दिस वे, सो दिस इज माई टेम्पोरल, सो वो लेफ्ट इसका राइट आई का विजुअल फील्ड, राइट आई की पेरीमेट्री है वो, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसके बाद क्या क्या डिफेक्ट्स मिलेंगे? अब यू हैव टू ड्रॉ योर विजुअल फील्ड इन आइसोप्टर्स, जिसमें कि नेज़ल होता है 50 डिग्री तक, मतलब नेजली पेशेंट 50 डिग्री तक दे सकता है, सुपीरियरली 60 डिग्री तक देख सकता है, इन्फीरियरली 70 डिग्री, एंड सबसे ज़्यादा टेम्पोरल क्वाड्रेंट देख सकता है, दैट इज़ 100 डिग्री, ठीक है। और जो सेंटर पॉइंट है वो फोवियल फिक्सेशन है, फोविया से 10 to 20 डिग्री टेम्पोरल है तुम्हारा ये ऑप्टिक नर्व हेड, जो कि मतलब स्कोटोमा ब्लाइंड स्पॉट बना रहा है, ठीक है। आई डोंट नो विजिबल होगा या नहीं, इस तरह का पैटर्न बनेगा। जो टेम्पोरल है 100 डिग्री तक फील्ड ऑफ व्यू है, जो फोवियल फिक्सेशन है वहाँ से 20 डिग्री टेम्पोरल जो है हमारा ब्लाइंड स्पॉट बनेगा, ठीक है। दिस सुपीरियर, इंफीरियर, नेजल। सो सबसे पहला चेंज जो विजुअल इसमें ग्लूकोमा में मिलता है, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कि जो 50 डिग्री नेजल देख पा रहा था वो 45 हो जाएगा, आइसोप्टर कॉन्ट्रैक्शन होता है। देन फर्स्ट फील्ड डिफेक्ट जो मिलता है वो होता है हमारा पैरासेंट्रल स्कोटोमा। पैरासेंट्रल स्कोटोमा क्या होता है? सबसे पहले आँख में इंफीरियो टेम्पोरल रेटिनल फाइबर्स खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि वो थिकेस्ट होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्फीरियर नोचिंग भी मिलती है। इसका भी एक और कॉन्सेप्ट है, अब मैं अगर डिटेल में जाती जाऊँगी ना तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सो इन्फीरियर रेटिना ख़राब होते हैं, तो इसका पेरीमेट्री पे कहाँ मिलेगा? कॉरस्पॉन्डिंग सुपीरियर टेम्पोरल डिफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये फील्ड है हमारा, ये टेम्पोरल है, ये नेजल है, तो फील्ड हमें पहला डिफेक्ट मिलेगा, ये ब्लाइंड स्पॉट है बी, ये होगा हमारा, आई होप यू ऑल कैन सी,
ये ब्लाइंड स्पॉट है मेरा टेम्पोरली, ये मेरा है सुपीरियो नेजल एरिया में। दिस इज़ माई पैरा आर्क्वेट स्कोटोमा, सॉरी पैरासेंट्रल स्कोटोमा, ठीक है। फिर क्या होता है सेकंड डिफेक्ट, ये इस ब्लाइंड स्पॉट से कंबाइन कर जाता है क्योंकि रेटिना के ये वाले फाइबर्स जा रहे हैं, तो जब ये कंबाइन कर जाएगा दिस इज कॉल्ड सीडल्स स्कोटोमा। देन अल्टीमेटली पूरी इंफीरियर रेटिना चली जाती है तो हमें यहाँ पे मिलेगा आर्क्वेट स्कोटोमा। फिर जब सुपीरियर रेटिना जाने लगती है तो हमें यहाँ पे नीचे वाले फील्ड इफेक्ट भी मिलेंगे, दैट विल बी डबल आर्क्वेट स्कोटोमा, ठीक है। अब इसमें एक लर्निंग पॉइंट है कि जो रेटिना में नॉर्मली होता है वो एक नेज़ल स्टेपिंग होती है जो रेटिनल फाइबर्स में होती है, तो वो हमें यहाँ पे रोनीज नेज़ल में आपको बना के दिखाती हूँ। दो द डायग्राम इज़ नॉट वेरी क्लियर बट मेन कॉन्सेप्ट जो है वो इससे समझ आ जाएगा। ये जो नेज़ली होती है ये आप देख सकते हैं कि सुपीरियर फाइबर्स यहाँ तक गए हैं लेकिन इन्फीरियर इसके एक्स्ट्रा चले गए। जो स्पेस बचा है सुपीरियर में दिस इज़ द रोनीज नेज़ल गैपिंग, ठीक है। और क्योंकि ये रेटिना में फाइबर्स लास्ट में जाते हैं इसलिए ये स्पेस बच जाता है। नाउ इसके आगे फर्दर एडवांस्ड अगर ये हो गया तो ये पूरा सेंट्रल विजन पेपिलोमैकुलर बंडल्स भी चले जाएंगे तो सेंट्रल विजन भी उसका चला जाएगा। अभी तक ये टनल विजन पे है, अगर ये बंडल चले गए तो पूरा ये स्कोटोमा हो जाएगा, पूरा सेंट्रल विजन भी गया। फिर सिर्फ लास्ट में क्या बचेगा तुम्हारा टेम्पोरल विजन लास्ट में बचेगा क्योंकि नेजल रेटिना फाइबर लास्ट तक रहता है, ठीक है। तो ये हो गई पेरीमेट्री की फाइंडिंग्स। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना प्राइमरी। सबसे पहले कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा पढ़ लेते हैं विच इज़ अ स्मॉल टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो, ठीक है। कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा, तो कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा में कॉन्जेनाइटल मतलब नाम से पता चल रहा है कि बाय बर्थ होगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या कह देंगे कि इट इज़ द एंगल एनोमली है, एंगल ही नहीं बन पा रहा है उस बच्चे के बाय बर्थ ही, जिसकी वजह से एक्वस ड्रेनेज नहीं हो पा रहा और आईओपी बढ़ा मिलेगा। फिर इसमें इसकी क्लासिफिकेशन हम करेंगे तो होगा ट्रू कॉन्जेनाइटल जो कि एट बर्थ प्रेजेंट होगा, देन होगा इन्फेंटाइल जो कि बर्थ टू 3 ईयर प्रेजेंट कर सकता है, एंड देन होगा जुवेनाइल जो कि 3 ईयर टू 20 ईयर्स में प्रेजेंट कर सकता है। अब बच्चा जब तक 3 ईयर्स का होता है तो उसकी स्क्लेरा एंड कोरोइड बहुत प्लाइबल होती है, तो अगर ग्लूकोमा ट्रू कॉन्जेनाइटल या फिर इन्फेंटाइल है तो इसमें आईओपी बढ़ने के साथ साथ ये लेयर्स स्ट्रेच होती हैं एंड इसमें ब्यूपथेल्मोस दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ आईबॉल हमें मिल सकती है, ठीक है। फिर कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा में बहुत इंपॉर्टेंट है एनोमली, एसोसिएटेड एनोमलीज, क्योंकि कोई भी कॉन्जेनाइटल कंडीशन है तो बेबी में और कई चीज़ें एसोसिएटेड हो सकती है कॉन्जेनाइटल, तो यहाँ पे इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 2 तरीके से एनोमली हो सकती है, तो ट्रेबिकुलर मैशवर्क डिस्जेनेसिस मतलब कि ट्रेबिकुलर मैशवर्क ही नहीं बना, ठीक है, या फिर आइरिडो कॉर्नियल डिस्जेनेसिस मतलब कि टीएम तो बना लेकिन वो फंक्शनल नहीं हुआ क्योंकि आइरिस और कॉर्निया में चिपकन हो गई है, दिक्कत हो गई है, तो टीएम ही जहाँ नहीं बन रहा है वो होगा तुम्हारा प्राइमरी। ये प्राइमरी डिफेक्ट है कि हमारा एंगल स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है, ठीक है, प्राइमरी ग्लूकोमा होगा और ये यूजुअली ओपन एंगल ग्लूकोमा होगा क्योंकि एंगल में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, टीएम नहीं बन रहा है, तो ओपन एंगल ग्लूकोमा। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पूरे ग्लूकोमा में काम आएगा। देखो 2 चीज़ें हैं, एक तो एंगल का स्ट्रक्चर जो कि टीएम है, अगर वो ख़राब है तो हम उसे ओपन एंगल बोलेंगे हमेशा, और अगर आइरिस और टीएम चिपका हुआ है मतलब एंगल बंद हो गया है तो इसको बोला जाएगा क्लोज एंगल, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ओपन एंगल ग्लूकोमा। फिर दूसरा है आइरिडो कॉर्नियल डिस्जेनेसिस, इसमें हमको मिलेंगे कुछ एसोसिएटेड कॉन्जेनाइटल एनोमली जैसे एक्सेनफील्ड रिगर सिंड्रोम, पीटर्स एनोमली एंड आइरिडिया, ये सब मिलेगा, ठीक है। और इसमें ये होगा तुम्हारा सेकेंडरी ग्लूकोमा क्योंकि किसी और एनोमली की वजह से हो रहा है, और इट कैन बी ओपन एज वेल एज एंगल क्लोज ग्लूकोमा, ठीक है। फिर कॉन्जेनाइटल ग्लूकोमा के हम आते हैं सिम्टम्स एंड साइंस पे। हमने डेफिनेशन पढ़ ली, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया और एसोसिएटेड एनोमलीज पढ़ ली।
सिम्टम्स क्या होंगे, बच्चे तुमने देखे होंगे कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा के, ओपीडी में ऑब्जर्व करना 3 मेन सिम्टम होते हैं इसके, ट्राइड भी कहा जाता है, और ये याद रखना ही रखना है। ब्लीफेरोस्पेज्म, आँख खुलेगी ही नहीं बच्चे की, ठीक है, अगर खुली तो वाटरिंग होगी, आँख से पानी बहेगा। एंड फोटोफोबिया, फोटोफोबिया का मतलब होता है नॉर्मल लाइट में ही उसको बहुत दिक्कत हो रही है। इसके अलावा आँख रेड होगी, बड़ी सी कॉर्निया होगी में, ठीक है, वाइट कॉर्निया होगी, ये सब सिम्टम्स होंगे। फिर साइंस में क्या होंगे, साइंस में पूरी आँख बड़ी हो जा रही है तो ब्यूपथेल्मोस सबसे पहला साइन, कॉर्निया भी बड़ी हो जा रही है, आँख बड़ी हो रही है तो मेगेलोकॉर्निया, इडिमा हो रहा है कॉर्निया में तो इडिमेटस या वाइट कॉर्निया। इसमें डेस्मेट मेम्ब्रेन ब्रेक करती है तो हो गया हेप्स स्ट्राया बनते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्राया बनते हैं डेस्मेट मेम्ब्रेन ब्रेक होने की वजह से, दैट इज कॉल्ड हेप्स स्ट्राया। नाउ यहाँ पे तुम्हें लिंक होना चाहिए कि तुमने वॉक्ट स्ट्राया भी पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है अभी तक तो क्रेटोकोनस में मिलता है हमें वॉक्ट स्ट्राया, यहाँ पे डीएम डेस्मेट ब्रेक होने की वजह से मिल रहा है हमें हेप्स स्ट्राया, ठीक है। इसके अलावा फिर एंगल में, एंगल कैन बी ओपन और क्लोज डिपेंडिंग ऑन क्या एटियोलॉजी है, यूजुअली एंगल ओपन होते हैं, ठीक है, एंगल एनोमली होती है, मतलब बनना ही नहीं होता है एंगल। फिर उसके बाद आइरिस तुम्हारी आइरिडोडोनोसिस मिलेगी, और लेंस तुम्हारी स्ट्रेस्ड होगी, ठीक है, और लेंस सबलक्सेशन मिल सकता है, और जोन्यूस वीकनेस मिल सकती है। फिर ब्यूपथेल्मस तो है ही, आँख बड़ी है, ठीक है, फिर डिस्क चेंजेस मिल सकते हैं, कपिंग एंड एवरीथिंग, तो ये सब साइंस हो गए। फिर कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा की इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगी, सबसे पहले तो बच्चे को हम ऐसे डायरेक्टली एग्जामिन नहीं कर सकते, बच्चा कराने नहीं देगा, तो सबसे पहला पॉइंट लिखा जाएगा इवेल्यूएशन अंडर एनेस्थीसिया, हमेशा एनेस्थीसिया के अंडर इवेल्यूएट करना है। फिर क्या करेंगे अंडर एनेस्थीसिया, सबसे पहले हम करेंगे उसका टोनोमेट्री, जो कि किससे करते हैं, परकिंस टोनोमीटर से। देखो जो गोल्ड स्टैंडर्ड टोनोमीटर है वो है गोल्डमैन, लेकिन गोल्डमैन को तो बिठा के, अगर आप लोगों ने पढ़ा है गोल्डमैन तो पता होगा, बिठा के बड़े लोगों में, कोऑपरेटिव लोगों में कर सकते हैं। इसी का पोर्टेबल वर्जन है परकिंस टोनोमीटर, जो कि एप्लीनेशन के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है, तो हम परकिंस से करते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले एनेस्थीसिया में ले जाते ही परकिंस क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, कोई और इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जब एनेस्थीसिया में जाता है तो आईओपी लो होने लगता है, तो हमें फॉल्स रीडिंग मिलेगी, इसलिए हमें विद इन मिनट्स आईओपी मेज़र कर लेना है बच्चे का। उसके बाद हम कॉर्निया मेज़र करेंगे विद कैलिपर, ठीक है, मेगालोकॉर्निया मिलेगी। अगर कॉर्निया मोर देन 11 mm है एट बर्थ, या फिर मोर देन 12 mm है एट 1 ईयर, इट इज़ सजेस्टिव ऑफ कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा। देन हम गोनियोस्कोपी से एंगल देख सकते हैं बच्चे का। न गोनियोस्कोपिक मिरर भी अलग अलग होते हैं, डायरेक्ट गोनियोस्कोपिक, इनडायरेक्ट, उसमें भी 12 mm एरिया, 9 mm एरिया, ये सब फिर गोनियोस्कोपी की डिटेल्स में चले जाएंगे, इतना नहीं अभी ले सकते हैं, ठीक है। गोनियोस्कोपी करेंगे, देन आईओपी हमने चेक कर लिया है। फिर यहीं पे बच्चे को डायलेट करके ऑन बेड फंडल स्पेस का देख सकते हैं, तो इसकी फाइंडिंग्स देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे हम ASOCT या फिर UBM कर सकते हैं। ASOCT एंटीरियर सेगमेंट OCT, जो कि एंगल दिखा देगा, ठीक है, और UBM जो है अल्ट्रासोनिक बायोमाइक्रोस्कोपी। नाउ मैनेजमेंट क्या करेंगे, डेफिनेटिव मैनेजमेंट जो है कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा का सर्जरी है, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट सिर्फ एक ब्रिज है टू सर्जरी, जब तक सर्जरी नहीं कर पा रहे तब तक हम मेडिकली ड्रग्स पे उसको लो करने का ट्राई करते हैं। सर्जरी 3 तरह की होती है इसमें, गोनियोटमी, ट्रेबिकुलोटोमी और ट्रेबिकुलोटोमी एंड ट्रेबिकुलेक्टमी। आई होप यू नो द डिफरेंस। गोनियो, अब मैं आपको इसको 3 स्टेप में समझाऊंगी कॉन्सेप्चुअली, ताकि इन तीनों सर्जरी में कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हम पहला चीज़ पढ़ेंगे कि इन तीनों सर्जरी में क्या स्ट्रक्चर काट रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप हम पढ़ेंगे कि कौन सा ड्रेनेज पाथवे हम इसमें बना रहे हैं। फिर तीसरा स्टेप हम पढ़ेंगे किस कंडीशन में हमें कौन सी सर्जरी प्रेफर करनी। तो सबसे पहले गोनियोटमी में क्या कर रहे हैं, एब इंटरनो प्रोसीजर कर रहे हैं और एंगल को काट रहे हैं, ठीक है। TM में हम विंडो बना रहे हैं अंदर से जाके, ठीक है। गोनियोस्कोपिक मिरर हम रखते हैं, अंदर से जाते हैं वाया दिस AC, एंड देन TM मेम्ब्रेन में हम विंडो बना देते हैं ना। ट्रेबिकुलोटोमी में उस केस में करते हैं जब मीडिया हेजी है, जब हम मिरर के थ्रू नहीं देख सकते, तो हम जो है ऊपर से एब एक्सटर्नो प्रोसीजर करते हैं, ऊपर से शर्म्स कैनाल को आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि लिम्बस के जस्ट उसमें होती है एडजेसेंट, ठीक है, और वहाँ से TM को कट करके विंडो बनाएंगे। देन ट्रेबिकुलेक्टमी, इसमें पूरे TM को, मतलब उस सेगमेंट ऑफ 1 या 2 क्लोकार TM को हटा दे रहे हैं, बाईपास कर दे रहे हैं पैसेज को, ताकि एक्वस सीधा AC से सब कंजक्टाइवल स्पेस में आ सके, ठीक है। नाउ कौन सा पाथवे हमने इंक्रीज़ किया, गोनियोटमी और ट्रेबिकुलोटोमी में तो हमने नॉर्मल TM वाला पाथवे इंक्रीज़ किया, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ TM में विंडो बनाई है।
एक जाली है पूरी, उसमें एक छेद कर दिया है सिर्फ हमने, ताकि एक्वस वहाँ से जाए नॉर्मल पाथवे। और जो ट्रेबिकुलेक्टमी है इसमें हमने उसको बाईपास ही कर दिया, तो हमने इसमें बेसिकली सब कंजक्टाइवल पाथवे ओपन कर दिया। ठीक है, फिर किस केस में करेंगे? अगर कॉर्निया क्लियर है, आपकी एंगल दिख सकते हैं, तो हम गोनियोटमी प्रेफर करेंगे। अगर हेजी कॉर्निया है तो हम ट्रेबिकुलोटोमी प्रेफर करेंगे। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो पा रही है या इस पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, दीज आर द इनिशियल प्रोसीजर, तो फिर हम ट्रेबिकुलेक्टमी करेंगे जिसमें ब्लड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, विद दिस वी कंप्लीट विद आवर कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा। अब हम आ जाते हैं प्राइमरी ग्लोकोमा पे। प्राइमरी ग्लोकोमा, सो सबसे पहले एक्सक्यूज मी, एग्ज़ाम राइटिंग के लिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखी जाएगी। तो डेफिनेशन क्या होगी कि प्राइमरी ग्लूकोमा में इट कुड बी एंगल डिफेक्ट और इट कुड बी ट्रेबिकुलर डिफेक्ट विद नो एसोसिएटेड ऑकुलर और सिस्टमिक कंडीशन, यही मतलब हुआ है प्राइमरी का। ठीक है, तो डेफिनेशन तुम लोग खुद से बना सकते हो, मेन इसके कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन सबसे पहले पढ़ेंगे ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल। ओपन एंगल में इट कुड बी नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा और ऑक्यूलर हाइपरटेंशन, और नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा, ऑक्यूलर हाइपरटेंशन और प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, इन सबको अभी डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। देन एंगल क्लोजर में 3 क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट, प्राइमरी एंगल क्लोजर एंड प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, और फिर सबसे इमरजेंसी ऑफ्थेल्मिक इमरजेंसी स्टेज है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं और नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा। इसकी डेफिनेशन नाम से पता चल रही है कि इसमें आईओपी जो है विद इन रेंज होगा ऑफ 21 मतलब 10 to 21 mmHg, जो नॉर्मल आईओपी रेंज मानी जाती है। ठीक है, लेकिन ऑप्टिक नर्व हेड चेंजेस होंगे और विजुअल फील्ड इफेक्ट होंगे। अब यहाँ पे मेरी वो लाइन प्रूव हो रही है जो मैंने स्टार्टिंग में की थी लेक्चर के, कि आईओपी इज़ नॉट द ओनली डिसाइडिंग फैक्टर फॉर ग्लूकोमा। ठीक है, यहाँ पे आईओपी देखने के लिए नॉर्मल है, लेकिन फिर भी इसमें ग्लूकोमेटस फाइंडिंग्स आ रही है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोमेटस फाइंडिंग्स कैन ऑल्सो बी ड्यू टू योर वेस्कुलर कॉजेज एंड नॉन वेस्कुलर कॉजेज। वेस्कुलर कॉजेज में क्या होता है, जो ऑप्टिक नर्व हेड है वहाँ से ऑप्टिक नर्व जा रही है, वहीं से सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और वेन की ब्रांचेस जा रही हैं जो कि इस ऑप्टिक नर्व को सप्लाई करती हैं, उसी की ब्रांचेस। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किस पार्ट को कौन सी मतलब थिंग्स गो ऑन लॉन्ग देन। चलो इस चीज़ को बता देती हूँ। लेमिना है, लेमिना के इधर प्री लेमिनर है, इधर रेट्रोलेमिनर एरिया है और इधर पूरा रेटिना है। ठीक है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी आ रही है, उसको मेनली पूरे रेटिना को सप्लाई करती है और प्री लेमिनर एरिया को सप्लाई करती है। प्री लेमिनर को और कौन सी पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी भी सप्लाई करती है। लेमिनर को मेनली पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी सप्लाई करती है, रेट्रोलेमिनर को फिर से इन दोनों के ब्रांचेस सप्लाई करती है। तो हम वापस लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। हम कह रहे थे सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, सॉरी टंग स्लिप, वी वर टॉकिंग अबाउट नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द वेस्कुलर कॉजेज। तो ये वेसल्स जा रही है। ठीक है, अब ये जब ये क्या कहते हैं, ये वेसल्स में कोई भी दिक्कत होगी, मतलब वेसल्स का स्पेज्म होगा किसी भी वजह से, वो कॉजेज में अभी बताऊंगी किस वजह से स्पेज्म होगा, तो वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी। बस यही तो हो रहा है ग्लूकोमा में। ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें स्पेज्म होगा? सबसे पहले तो वेसल स्पेसिफिक डिसीज़ कोई भी हो, जैसे रेनॉल्ड्स डिसीज़ हो गई। ठीक है, इसके अलावा हाइपोटेंशन हो, या तो सिस्टेमिक हो, पोस्चरल हो, नॉक्टर्नल हाइपोटेंशन हो, जिसकी वजह से आँखों में ब्लड सप्लाई ही कम जा रही है। ठीक है, इसके अलावा डायबिटिक कंडीशंस हो गई तुम्हारी, या फिर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो ये सब जो है कैरोटिड वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं और ब्लड सप्लाई कम हो जाती है इन सब की वजह से। तो ये वेस्कुलर कॉजेज हो गए ग्लूकोमेटस ऑप्टिक एट्रोफी के। देन सम नॉन वेस्कुलर कॉजेज, जैसे हाई मायोपिया, जिसमें आई बॉल बहुत बड़ी हो गई है, तो ये चीज़ वैसे ही थिन हो जाएगी, इसका सपोर्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्स्ट्रक्ट होगी। हाई मायोपिया हो गया, थिन कॉर्निया हो गया, एल्डरली पेशेंट हो गया, मेल पेशेंट हो गया। मेल पेशेंट में भी आँख बड़ी होती है ना, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जेनेटिक कुछ कंडीशंस हो गई ऐसी जिसमें कि ग्लूकोमा ज़्यादा डेवलप हो गया, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा हो गई। तो ये कॉजेज है बेसिकली नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा के। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ट्रांसलेमिनल, ये लेमिना है, ये पेन, दिस यू कैन सी दिस गैप, दिस इज पेन इज लेमिना, दिस इज प्री लेमिनल स्पेस, दिस इज पोस्ट लेमिनल स्पेस।
तो यहाँ का जो प्रेशर बन रहा है प्री लेमिनर, ये आईओपी की वजह से प्रेशर बन रहा है। पोस्ट लेमिनर जो ऑप्टिक नर्व यहाँ से जा रही है उसके चारों तरफ है अराकोनॉइड, उसमें सीएसएफ फ्लो कर रहा है, तो वो प्रेशर जो बन रहा है वो बन रहा है ड्यू टू दिस सीएसएफ। ठीक है, तो दो प्रेशर काउंटरएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, आईओपी एंड सीएसएफ प्रेशर। जब उन दोनों के माइनस आईओपी माइनस सीएसएफ विल मेक ट्रांसलेमिनर प्रेशर। तो अगर किसी कंडीशन में ट्रांसलेमिनर प्रेशर बढ़ जाता है तो अगर आईओपी मान लो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन सीएसएफ प्रेशर रिड्यूस हो गया है, तो जो नॉर्मल आईओपी है वो भी अफेक्ट करेगी क्योंकि ट्रांसलेमिनर प्रेशर बढ़ गया है। आई होप यू गॉट माई कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो इसमें फाइंडिंग्स वही मिलेंगी ऑप्टिक मैंने एक ही बार इसलिए आपको अच्छे से पढ़ा दिया। ऑप्टिक डिस्क चेंजेस और विजुअल फील्ड चेंजेस हर चीज़ में अब आगे जो जो पढ़ते जाएंगे सब में सेम छाप सकते हो, क्योंकि अल्टीमेट फाइंडिंग सेम होने वाली है, सिर्फ पैथोजेनेसिस अलग होने वाली है हर चीज़ की। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन फिर से हम वही करेंगे। इसमें आईओपी हमें नॉर्मल रेंज में मिलेगा और बाकी चीज़ें एंगल्स भी ओपन ही मिलेंगे, क्योंकि एंगल्स में कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। ठीक है, सारी यहाँ पे पैथोलॉजी जो है पीछे हो रही है डिस्क लेवल पे, ये सब चीज़ें होंगे। फिर इसके बाद मैनेजमेंट इसका। अब हमारा मेन एम जो है इस आईओपी को, जो कि एज सीन नॉर्मल आईओपी है, ठीक है, किसी बंदे के लिए 21 mmHg मान लो इसका है, वो नॉर्मल है, लेकिन इस बंदे के लिए वो नॉर्मल हाई है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है टारगेट आईओपी का। टारगेट आईओपी वो आईओपी होता है जिसपे प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी होल्ड हो जाए। ठीक है, तो नॉर्मोटेंशन ग्लूकोमा के पेशेंट में टारगेट आईओपी होता है 30% रिड्यूस्ड ऑफ द बेस लाइन आईओपी। ठीक है, तो जो भी मान लो 21 mmHg है तो उसका 30% कम होगा जो हमें उस पेशेंट के लिए रखना है। फॉर एग्जांपल ये आ रहा है 16 mmHg हमें इस पेशेंट का रखना है, तो आईओपी कम करने वाली ड्रग्स देंगे, एक्वस प्रोटेक्शन कम हो वो वाली ड्रग्स देंगे, ड्रेनेज ज़्यादा हो। अब ये मेडिकल मैनेजमेंट हम लास्ट सेशन में पढ़ेंगे, उसमें समझ आएगा। ठीक है, लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, आई थिंक मैं बहुत डिटेल में जाते जा रही हूँ। आई विल ट्राई टू कंसाइज इट मोर। देन ये हो गया पहला मैनेजमेंट। देन दूसरा मैनेजमेंट इसका, आप सर्जरी कर सकते हैं, वही ट्रेबिकुलोप्लास्टी हम यहाँ पे करते हैं यूजुअली, ये लेज़र से होती है। ठीक है, लेज़र फिर दो तरह के होते हैं, ALT SLT, आर्गन लेज़र और सेलेक्टिव लेज़र ट्रेबिकुलोप्लास्टी। इसकी डिटेल्स फिर से हम लेज़र में पढ़ेंगे, नॉट हियर। फिर ओकुलर हाइपरटेंशन का मतलब है कि यहाँ पे क्या नाम से पता चल रहा है, आईओपी बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन ग्लूकोमेटिस चेंजेस, ऑप्टिक नर्व चेंजेस और विजुअल फील्ड चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ पे आईओपी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अब मतलब आईओपी पहले से उस पेशेंट का बढ़ा हुआ है, अब कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होंगे जिसकी वजह से वो प्रोग्रेस करेगा टू ग्लूकोमा। तो वो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ जनरल रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे एल्डरली पेशेंट, फैमिली हिस्ट्री हो गई, मायोपिक पेशेंट हो गया। देन कुछ या आई गॉट डिस्टर्ब, सॉरी। तो वेयर वर वी, कुछ हाँ रिस्क फैक्टर्स हम पढ़ लेते हैं ऑफ ओकुलर हाइपरटेंशन। तो जनरल रिस्क फैक्टर्स हो गए, एल्डरली एज हो गया, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री हो गई। देन वी हैव योर ओकुलर रिस्क फैक्टर्स। ओकुलर रिस्क फैक्टर्स में जो हमने अभी पढ़े थे, थिन कॉर्निया हो, मायोपिक हो पेशेंट, दैट आईओपी रेज्ड हो उसका, ठीक है, पीएसडी एक पेरीमेट्री मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो पीएसडी उसका एक क्राइटेरिया होता है, पैटर्न स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर ये मोर देन 5% है तो दिस इज़ द रिस्क फैक्टर। देन वी हैव ओकुलर जनरल एंड सिस्टमिक रिस्क फैक्टर, जैसे पेशेंट डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, हाइपोथायरॉयडिज्म हो, ठीक है, इन सबसे वही हो जाएगा, वेस्कुलर सप्लाई में कमी हो जाएगी। ये सब रिस्क फैक्टर्स हो गए ओकुलर हाइपरटेंशन के। देन इसके क्लिनिकल फीचर्स तो बस वही है कि आईओपी इसका रेज्ड होगा। फिर इन्वेस्टिगेशंस में आईओपी फिर से हम टोनोमेट्री करेंगे तो रेज मिलेगा, बाकी गोनियम वगैरह पे एंगल्स ओपन मिलेंगे, कोई ऐसी ऑप्टिक डिस्क फाइंडिंग नहीं मिलेगी। तो इसका मैनेजमेंट क्या होगा, एंटी ग्लूकोमेटिक ड्रग्स हम देंगे। ठीक है, इसमें कोई एग्रेसिव मैनेजमेंट नहीं करना, लेकिन फॉलोअप करते रहना है। एक स्टडी है बहुत इंपॉर्टेंट, ओकुलर हाइपरटेंशन स्टडी। तो आई डोंट नो एट योर मतलब दिस लेवल इट इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट, और उसका एग्जैक्ट नंबर्स में मुझे याद नहीं आ रहे। कुछ पर्टिकुलराइज ली थी जिस पे उसने स्टडी ये थी कि उसने एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स दी थी टू सी द प्रिवेंशन एंड होल्टिंग ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ ग्लूकोमा। मतलब
ऑक्यूलर हाइपरटेंशन है, रिस्क फैक्टर्स हैं पेशेंट को, उसको एंटी ग्लूकोमा ड्रग दिया तो देखा कि कितनों को प्रिवेंट हुआ, कितने ट्रीट हो पाए। तो जिसको दिया रिजल्ट वॉज, जिसको दिया उसमें 4.5% पेशेंट्स में डेवलप्ड इनटू द ग्लूकोमा एंड जिसको नहीं दिया उसमें 9.5% लैंड अप टू ग्लूकोमा। सो गिविंग वॉज गुड फॉर पेशेंट्स, ठीक है। देन वी कम टू द मेन थिंग, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो इसकी डेफिनेशन फिर से बच्चों तुम खुद बनाओगे कि प्राइमरी ओपन एंगल क्या है। मतलब कोई ऑक्यूलर या सिस्टमिक कॉज नहीं है और एंगल्स ओपन है, आईओपी रेज्ड है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट और ऑप्टिक नर्व फाइंडिंग्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। नाउ इसके रिस्क फैक्टर सेम हो जाएंगे जो ऑक्यूलर हाइपरटेंशन के हैं, क्योंकि ऑक्यूलर हाइपरटेंशन से ही हम ग्लूकोमा में लैंड अप कर रहे हैं, तो सेम रिस्क फैक्टर्स हो जाएंगे, जनरल, ऑक्यूलर और सिस्टमिक, ठीक है। फिर इसमें जेनेटिक फैक्टर कुछ हो सकता है, दैट इज़ म्यूटेशन ऑफ, ये बस रटने वाली चीज़ है, म्यूटेशन ऑफ, मैं भी भूल जाती हूँ इस लाइन को, ऑप्टिन्यूरिन एंड जीन है ये, म्यूटेशन ऑफ मायोसिलिन एंड ऑप्टिन्यूरिन जीन, ठीक है। देन इसके बाद इसका मैनेजमेंट फिर से हम डिटेल में लास्ट सेशन में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए नाम रख लो, एंटी ग्लूकोमा मेडिसिन देंगे, देन लेज़र कर सकते हैं एंड सर्जरी विच इज़ मोस्ट कॉमनली ट्रेबिकुलेक्टमी। बहुत सारी सर्जरीज होती हैं, सबसे कॉमन ट्रेबिकुलेक्टमी होती है, ठीक है। फिर हम आते हैं एंगल क्लोजर ग्लूकोमा पे। ना इसके रिस्क फैक्टर्स अलग हैं क्योंकि अब हम एंगल क्लोज वाली बात कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्चुअली ये समझो कि एंगल क्लोज कब होगा, जब आँख छोटी होगी तुम्हारी, ठीक है। आँख छोटी यूजुअली किस में होती है, फीमेल्स में होती है। हम हमेशा करते रहते हैं कि इसमें फीमेल मोर कॉमन, इसमें मेल कॉमन। ग्लूकोमा में बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है कि फीमेल मोर कॉमन कब होगी, जब हम कोई छोटी आँख वाली बात करेंगे, ठीक है। शॉर्ट एक्सियल लेंथ हो गया, हाइपरमेट्रोपिक आई हो गई, छोटी आई होती है, ठीक है। किसी का जो लेंस है वो सबलक्सेट हो गया आगे, तो उसकी एक्सियल कम हो गई, ठीक है, एंटीरियर सबलक्सेशन ऑफ लेंस। किसी का लेंस फेकोमॉर्फिक में चला गया, फूल गया है वो, या फिर ट्रोमेटिक लेंस हो गया, ठीक है, उसमें भी लेंस फूल जाता है। बेसिकली एक्सियल लेंस जिसमें कम हो जाए, वो सारे रिस्क फैक्टर होंगे एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के, क्योंकि उससे क्या होगा, आइरिस आगे पुशअप होगी और ट्रेबिकुलर मेशवर्क पे ओवरले करेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझोगे तो कभी भूलोगे नहीं चीज़ें। इसके बाद ये हो गए रिस्क फैक्टर्स। फिर ये 3 स्टेज में था प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें आईरी टू ट्रेबिकुलर कॉन्टैक्ट रिवर्सिबल होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है एंड रिवर्सिबल होता है, बाकी कोई इसमें चेंज नहीं होगा। फिर प्राइमरी एंगल क्लोजर में इसमें अब इरिवर्सिबल 180 डिग्री कॉन्टैक्ट हो गया, प्लस इसमें आईओपी बढ़ा रहता है, प्लस माइनस पास फॉर्मेशन हो सकता है। व्हाट इज पास, पेरिफेरल एंटीरियर साइनिक के बन सकता है, ठीक है। फिर प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में अब सब कुछ हो जाएगा, आईओपी बढ़ा है 180 डिग्री, आईटीसी है, पास बन गया है, ऑप्टिक नर्व हेड चेंजेस हैं, पेरीमेट्री चेंजेस हैं, ठीक है। और एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा अपने आप में एक अलग टॉपिक है। इसमें एक्यूटली राइज इन आईओपी होता है और छोटा मोटा राइज नहीं, कितना, मोर देन 40 to 60 mmHg राइज होता है, पेनफुल ब्लाइंड आई हो जाती है, ठीक है। ये इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग से पढ़ाएंगे इसको। तो प्राइमरी एंगल क्लोजर में क्या हो गया, अब एंगल बंद है तो साइन सिम्टम्स क्या होंगे, वही एंगल बंद हो गया, आईओपी बढ़ रहा है, उसकी वजह से कॉर्नियल इडिमा होगा, ठीक है। तो पेन होगा, रेडनेस होगा, कॉर्नियल इडिमा होगा, ब्लरिंग होगी, फोटोफोबिया होगा। और साइंस में क्या हो जाएगा, सीलियरी कंजेशन, कंजक्टाइवल कंजेशन हो गया तुम्हारा, कॉर्नियल इडिमेटस हो गई, वाइट हो गई, फिर आईओपी बढ़ा है तो हार्ट टेंस, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस फिर से वही बेसिक सारी इन्वेस्टिगेशन करा लो, टोनोमेट्री करा लो, गोनियोस्कोपी, फंडोस्कोपी, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन ये सब करेंगे, ASOCT, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट उसी मोडेलिटीज़ पे ट्रीटमेंट बेस्ड है कि पहले तो हमें आईओपी लोअर करना है तो आईओपी लोअरिंग सारी ड्रग्स देंगे। तो जब मैं लास्ट सेशन लूँगी मैनेजमेंट का, उसमें इन सबकी मैं डिटेल पढ़ाऊँगी, अभी यहाँ पे सिर्फ नाम हम लिखते जा रहे हैं। देन तुम्हारा लेज़र कर सकते हैं और सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा जो मैंने कहा था, दिस इज ऑप्थेल्मिक इमरजेंसी, तो इसमें सर्जरी का हम वेट नहीं कर सकते। इसका मैनेजमेंट क्या होगा, सबसे पहले तो इसके क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, एक्यूट पेन के साथ, मतलब उसको अनबियरेबल पेन होगा, ठीक है। विजन एकदम ख़त्म हो जाएगी, ब्लाइंड आई, आईओपी इतना ज़्यादा रेज्ड है, बिल्कुल ऑप्टिक नर्व को ख़त्म कर देगा वो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें प्रेजेंटेशन में होंगी। फिर इसका मैनेजमेंट होगा, IV मैनिटोल देंगे इसमें। मैनिटोल कितना डोज से दिया जाता है, 5 mg/ml दिया जाता है ओवर 1 आवर। 1 घंटे में इसका इफेक्ट आ जाता है, 4 आवर्स में पीक पे चला जाता है और अप टू 6 to 8 आवर्स में इसकी टी हाफ होती है, ठीक है।
तो मैंने IV मैनिटोल फर्स्ट चॉइस है, IV एसिटाजोलामाइड दे सकते हैं। उसके बाद जब थोड़ा कंट्रोल में आ जाए तब हम देंगे इसमें मायोटिक ड्रग्स, क्योंकि ये है कि मायोटिक्स जो है 40 के ऊपर काम नहीं करता है, जो तुम्हारा पाइलोकार्पिन है मायोटिक। अच्छा, मायोटिक क्यों दे रहे हैं? मायोटिक क्या करेगा? मियोसिस करा देगा, पेरिफेरल आइरिस को खींच देगा, ठीक है। तो जो आइरिस ट्रेबिकुलम से चिपकी हुई थी, जब वो मियोसिस के लिए खींचेगी तो यहाँ से छूट जाएगी, ये हम चाहते हैं। तो हम मायोटिक्स देंगे, लेकिन मायोटिक्स 40 से कम पे काम करता है, तो पहले हम IOP को लोअर करेंगे, देन वी कैन गिव मायोटिक्स एंड अदर एंटी ग्लूकोमा ड्रग जो IOP को थोड़ा मेंटेन करके रखे। उसके बाद वी कैन प्लान दिस पेशेंट फॉर सर्जरी। नाउ सिंस इसका ऑप्टिक नर्व जा चुका है इस लेवल तक आते आते, विजन बची नहीं है, अगर ब्लाइंड हो चुका है पेशेंट, तो हम कोई ऐसी सर्जरी नहीं करना चाहेंगे जिसमें विजुअल पोटेंशियल के उम्मीद हो, ठीक है। मतलब ऐसी कोई सर्जरी यहाँ वैलिड ही नहीं होगी। हम करेंगे इसका बेसिकली पेन मैनेजमेंट, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है क्योंकि पेशेंट को, और विज़न से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो वी गो फॉर साइक्लो डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स। ये भी हम मैनेजमेंट में पढ़ेंगे लास्ट सेशन में। तो इसमें क्या करते हैं, सीलियरी प्रोसेस को साइक्लो थर्मल एनर्जी से जला देते हैं, ठीक है। एंटीरियर सीलियर प्रोसेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो एक्वस बनता ही नहीं है। एक्वस बनेगा नहीं तो पेन होगा नहीं, और पीछे विजन से कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। तो विद दिस वी कंप्लीट आवर सेशन ऑफ प्राइमरी ग्लूकोमा ऑल्सो। आई ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, फिर भी बिट्स एंड टिट्स छूट जाते हैं, तो आई विल कवर। हाँ, जैसे या एक पॉइंट छूट गया, नॉर्मोटेंशन ग्लूकोमा में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज डिस्क हेमरेज। अगर आपको अनइवेंटफुली भी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, अगर फंडस पे डिस्क पे हेमरेज बन गया है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर नॉर्मोटेंशन ग्लूकोमा। उसको आपको फॉलोअप में रखना चाहिए पेशेंट को, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट विद आवर फर्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।